अभी एक नया कंपनी शुरू कर रहा हूँ। इस कंपनी में क्या होता है, लॉन्ग आइटम नेम ऑलरेडी मैंने कोटेशन में आपको दिखा दिया है। ये लॉन्ग आइटम नेम का यूटिलाइजेशन कहाँ यूज़ हो जाता है, देखिए रिटेलर का पास क्या होता है। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रिटेलर इज सी मोस्ट ऑफ द रिटेलर आइटम्स दे आर एक्चुअली even that item description is bounded to the item name, so that whenever he want, retailer is a very careful person because he is having lot of experience in the field of marketing, whereas the manufacturers and as well as the distributors, they are knowing the item by only by the name of only by part numbers. See, manufacturers actually they know, but when a supplier is supplying item, actually for if he is a OE customer, if he is a OE supplier, then in the open market what does he do is he knows actually what is the little bit changes that is to be incorporated to accommodate the needs of the new model. ये एक्चुअली क्या हो जाता है ऑटोमोबाइल फील्ड में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब एक नया मॉडल बाहर लिख के निकल के आ जाता है ना, so whenever that a new model rolls out, actually those new models they're somewhere in some products they're having very little difference compared to the older products. In this is very useful information for the retailers क्या कर देते हैं, they catch the point, they will never disclose it to the supplier or to the manufacturer. So whenever a new product released, and if that new product, for example a wiring loom, if a new wiring loom is needed for a new model, actually that retailer first goes and looks at the previous existing model. So he will differentiate actually what is a little bit changes that is needed to be incorporated. Immediately he catches up that, so that prevents his inventory. वो क्या कर देगा immediate, अगर मेरे पास मटेरियल नहीं है तो गैप में एडजस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, जो वो ओल्ड मॉडल था ना, वॉट एवर दैट ओल्ड मॉडल वॉज एक्सिस्टिंग विथ हिम, so in that stock he will just guide the mechanic, you just cut this wire and join somewhere else so that it will be suiting to your existing model. So stock मेंटेन करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, they are very cautious with a part number and as well as item description. So this is a case, this is needed for some of the industries like automobile industry. अभी मैंने आपको क्या किया था लास्ट टाइम, I had shown it in a quotation format. There actually I had mentioned as long item name somewhere something like that. I am printing without using any other tables. How is it possible? It is possible by writing proper subqueries. First अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो बैक एंड एसक्यूएल सर्वर है, वर्जन 90 SSMS तो मेरा 19.3 है, 2024 का है वो, बट एसक्यूएल एक्सप्रेस 2022 का है मेरे पास। अगर आप 22 में रहने दीजिए या 2008 में रहने दीजिए या 2016 में रहने दीजिए या 2014 रहने दीजिए, देर इज़ नो मच डिफरेंस फंक्शनली फॉर विजिविंग यूजर्स। आप लोगों के लिए फंक्शनली there is no much difference because second language I had struggled a lot for the second language. After downloading 19.3 and installing it I had actually I have installed nearly 8 instances. 12 instances मैंने पहले इंस्टॉल किया था, बट when it is a case of 12 instances तब क्या हो जाता है, up to 10 instances, वो जो instances जो आपको क्या करना कन्फिगर करने में दिखता है, 10 के बाद तो नहीं दिखता है. दिस वॉज एक्चुअली what happened to me earlier. So after that I got my laptop formatted. अब मेरे पास 8 instances है. 8 instances में actually there are only 2 perfect working instances. बाकी इंस्टेंसेस में मैंने क्या किया था, वो एसक्यूएल कोलेशन प्रॉपर्टी, वो रीजनल लैंग्वेज कन्वर्शन करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बाद में नेम एसएल का फील्ड सॉल्व कर दिया. अब देखिए यहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ, आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो रहा है, या डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो रहा है. ये मास्टर डिस्क्रिप्शन अभी जो आपने जो देखा है ना, 4 पिन कपलर टाइप RR यूनिट एंड CDI सॉकेट बोल के यहाँ लिखा है ना, ये जाके आपका मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल में स्टोर हो जाता है. अब फर्स्ट मैं आइटम्स तो क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक डमी बिल तो डाल रहा हूँ. So I am making a dummy invoice for this by using these items. Value whatever that is you are seeing on the screen, they are dummy. Actually this particularly that MAT 4-stroke 4-pin couplet type wiring loom, that was SAP 240F, I think it was for the Swiss company.
नाउ दैट मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट एंड दैट ये डेमो दिखाने के लिए मैंने ऐसा ऐड किया है। अब देखिए मैंने ग्रुप तो क्रिएट कर रहा हूँ व्हील रिम, ये तो क्रिएट हो रहा है। अब इतना होने के बाद क्या होता है, अब लिस्ट में देखता हूँ, आई एम सीइंग समवेयर अराउंड 8 आइटम्स, सी somewhere around 8 items. Now I will start making invoice. अब देखिए 1/12/2024 फाइनेंशियल मेरा ईयर तो 2024-25 एज इट इज़ ए ट्रायल वर्जन, मैं एक ही महीना यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर मीन्स the beginning of the books and closing of the books, that will be from 1/4/2024 to 31/3/2025। लेकिन मैं ट्रांजैक्शन तो कर सकता हूँ, कोई महीना में कर सकता हूँ, बट आई कैन मेक इट ओनली फॉर 1 मंथ। ये डेमो वर्जन का उतना ही रहता है। अब अगला वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीमेंट डीलर, उनका एक बिहार का एक सीमेंट डीलर ने उनका एक प्रोजेक्ट मुझे भेजा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन यहाँ तो नहीं आ रहा है। अब तो वोचर सेटिंग, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में मैं रीसेट कर देता हूँ। वहाँ क्या हो जाता है, उनका सीमेंट डीलर के पास उनका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में उनका सेल्स का एक टारगेट है उन लोगों के लिए। वो टारगेट अगर अचीव कर दिया तो उसका भी डिस्काउंट स्कीम अलग है, ऐसा पूरा है। अभी ऑलरेडी मैंने मेरे पास तो ये डेमो मोड है, इसके लिए मेरे दोस्त के पास जाके उनका एक 50% ऑफ द वर्क मैंने कर चुका हूँ। अब अगला वीडियो वही होगा। वो वीडियो हासिल करने के लिए मैंने फॉलियो 1 टेबल को यूज़ करना पड़ता है। फॉलियो 1 टेबल में जैसा बैंक में आपका जिनको कॉमर्स पता है उनको पता रहता है, फॉलियो बोले तो उनको पता रहता है, बिकॉज आई वॉज ए साइंस स्टूडेंट एंड it was very difficult for me to understand busy at the beginning stage. Later I developed interest in that. Gradually मैंने भी अकाउंटेंसी तो मुझे नहीं आता है, बट ट्रांजैक्शंस मैंने सीख लिया है बस। अब देखिए मैं एक अभी एसक्यूएल कोड लिख रहा हूँ। ये कोड तो बेसिकली एक गलत कोड है। अब तो लिखता हूँ, क्यों गलत कोड मैंने लिखा? See, you may ask me why you have written wrong codes. See, I have written wrong code because after writing that code only and testing that only, I understood that it's a wrong code. Because see, though it looks logically it is correct, but when it is logically correct, but it is not giving me the result. Because there what happened, see, I used, instead of single table by writing the subquery, I connected 2 tables by using inner join. inner join तो मेरा फेवरेट जॉइन है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं, इसे इमीडिएट रिजल्ट दे देता है। मैं मोस्ट केसेस आई हैव रिटन लेफ्ट जॉइन आल्सो, बट थोड़ा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट दैट इज आई एक्चुअली लाइक इनर जॉइन वेरी मच. So most of the cases I had written actually even in left outer join also, and in some cases right join also. That depends upon whatever the condition and whatever the requirement that the party is going to put me. So depending upon all that and depending upon the application and whatever the result I would like to have, so depending upon that I am using maybe left or right join, I don't know what to use. So depending upon my use, my requirement, actually I am using that. So mostly I am using inner join. inner join तो मुझे most of the cases बहुत आसानी से मेरा काम हो रहा है. Sometimes I need to join 3 or 4 tables. अब रीराइट हो गया. अब रीराइट इसलिए मैंने किया क्योंकि when I was making the invoice, actually item master description was supposed to come, but wrongly by having not configured voucher configuration, so actually it was not coming. Now I have deleted that invoice and making a new invoice right now. अब देखिए, अब ये आइटम के लिए कुछ आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन नहीं था.
अब इसके लिए देखिए अभी आ गया, सी नाउ इट हैज़ कम. नाउ व्हाट आई विल डू, सी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द आइटम लॉन्ग आइटम नेम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम यूजिंग एक्चुअली कॉन्कैटिनेशन फंक्शन दैट प्रॉपर्टी. अगर जो एक्चुअली जो क्या है एक्सेस बैकएंड यूजर्स के लिए ये कॉन्कैट फंक्शन तो यूज़ नहीं होता है. उन लोगों को क्या करना है, जो क्वेरी मैंने अभी कॉन्कैटिनेट करने से पहला लिखता है ना, वो क्वेरी तो सेम ही है, एक्सेस डाटाबेस को भी सेम ही है एंड एसक्यूएल डाटाबेस के भी सेम ही है. इंस्टेड ऑफ कॉन्कैट आप क्या करना है, कॉमा डालने के बाद ब्रॉकेट क्लोज करता हूँ ना, राइट एंड लेफ्ट ब्रॉकेट करने के बाद मैं कॉमा डालता हूँ ना, कॉमा डालने के बाद आपको क्या करना है, आपका कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के 7 नंबर का की रहता है ना, 7 नंबर का ऊपर एम्परसेंट की रहता है. एम्परसेंट आपको पता नहीं है ना, एंड को बोलकर लिखने में बोर्ड में ये एंड लिखता है ना 8 का जैसा, वो एंड को डालो, वो तब क्या कर देता है, वो 2 स्ट्रिंग को मिला देता है. आपको कॉन्कैटिनेट जो करता है वही सिमिलर इफेक्ट आपको भी मिल जाता है. दो एक्सेस यूजर्स क्या है उनके लिए क्वेरी गिरी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ नहीं है फ़र्क. मैं कॉन्कैट यूज़ कर देता हूँ, आप कॉन्कैट को छोड़ दो. आप 2 स्ट्रिंग मिलाने के लिए, स्ट्रिंग का मतलब ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेलेक्ट आइटम डेस, ऐसा कुछ जो आता है ना वर्ड्स आपको नहीं समझ, जिनको टेक्निकली पता नहीं है उनको बोलता हूँ वर्ड्स. वो फॉन्ट 2 स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए, स्ट्रिंग का मतलब सिंपली आप एक समझ सकते हुए एक छोटा सेंटेंस या छोटा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सम कैरेक्टर्स. देखिए यहाँ डायरेक्ट एसक्यूएल बोल के है, यहाँ डायरेक्ट एक स्ट्रिंग हो जाता है, ये एसक्यूएल एक स्ट्रिंग हो जाता है. देखिए आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेरी टाइप दिख रहा है और डायरेक्ट है, ये एसक्यूएल है. डायरेक्ट का मतलब वो एक स्ट्रिंग हो जाता है, एसक्यूएल बोल के जो लिखा है ना वो भी एक स्ट्रिंग हो जाता है. मुझे जो मिलाने के लिए एम्प इसको क्या कर देता हूँ, आगे देखिए यहाँ प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट एसक्यूएल बोल के सिंगल वर्ड में प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट लिखने के बाद आपको आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्क्रीन के ऊपर 7 नंबर का स्क्रीन का ऊपर एम्परसेंट आ जाता है. किन के लिए जो एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ ना उनके लिए बता रहा हूँ मैं, उन लोगों के लिए वो यूज़ करना पड़ेगा, एम्परसेंट की यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन जो मैं सर्वर पे हूँ, मेरा बैकएंड तो एसक्यूएल सर्वर है, मैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, कॉन्कैट बोल के बुला के मैं मिक्स कर देता हूँ. ये स्क्रीन अभी ब्लैंक हो रहा है क्योंकि बिकॉज सी आई हैव स्पेसिफिकली मेंशनड हियर वोचर टाइप इज इक्वल टू 2. ये फर्स्ट गलती है क्योंकि वो मैं डाला हूँ सेल्स इनवॉइस एंड ऑन द स्क्रीन आई एम शोइंग यू वोचर टाइप 2. ये क्या हो जाता है गड़बड़ी से, आपको भी हो जाता है, ये सब मुझे भी हुआ है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है. जब आपका ध्यान सिर्फ कोई नहीं है, जब आपका ध्यान कंप्यूटर का स्क्रीन पे ही होता है तभी एक बार अचानक गलती से ऐसा हो जाता है. अब देखिए एंट्रा2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2, गलती से एक बार हो जाता है. ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है tran2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू, tran2 में टी कैपिटल, रेक्ट टाइप में आर कैपिटल, टी टाइप में टी कैपिटल. ये ऐसा कुछ नहीं है, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल लेटर में लिखो, एसक्यूएल मिक्स नो डिफरेंस. ओके हो गया. अब यहाँ तो मैं राइट कर देता हूँ टॉप वन का लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे. अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टिंक्ट. ओके यहाँ तो लिखा डिस्टिंक्ट. फिर भी आई एम हैविंग डुप्लीकेट एंट्रीज बिकॉज सी माई जॉइन इट सेल्फ इज नॉट करेक्ट. देर आर सेवरल वेज टू रिमूव दैट डुप्लीकेट एंट्रीज. जॉइनिंग इज नॉट क्लियर. क्या कर रहा हूँ मैं, tran2 एक पेरेंट टेबल है, इस tran2 टेबल को मैं जाके लिंक कर रहा हूँ किसके साथ. देखिए यहाँ गलती है, देखिए गलती क्या है दिखा देता हूँ. I2 का मतलब आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल, वो I2 का आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल को वो चाइल्ड टेबल को मैं पेरेंट टेबल से मिला रहा हूँ. अब देखिए tran2 डॉट एस आर नंबर इज एट द रेट आइटम एस आर नंबर एंड I2 डॉट एस आर नंबर इज इक्वल टू एट द रेट आइटम एस आर नंबर.
कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आई दबा दिया तो आप जब स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये ऐसा फील्ड ओपन हो जाता है, आपको बैक एंड जाके हर टाइम आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं रहता है। अब I2.SR नंबर इज इक्वल टू I2 फील्ड में SR नंबर तो रहता ही है, उस फील्ड को मैं बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे आई वॉन्ट टू सेंड इट टू दी प्रिंटिंग, नॉट टू दी प्रिंटिंग, सेंड इट फॉर प्रिंटिंग। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनकैट। देखिए ये गलती तो मैं ये रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद बोल देता हूँ। लॉजिकली जो क्वेरी आप स्क्रीन पे देख रहा है उसमें कुछ भी गलती नहीं है, लॉजिकली दैट इज करेक्ट। अब देखिए आपको लॉन्ग आइटम लिस्ट तो मिल ही गया, लॉन्ग आइटम लिस्ट तो आपको मिल ही गया, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिटेलर, देखिए मैं अभी बोल देता हूँ सेट ऑफ 5 लॉकेट स्प्लेंडर, उसमें लिमिटेड एडिशन ऐसे लिख देता हूँ, तब उनको पता चल जाता है कि सो दिस पार्टी पर्टिकुलरली व्हाट ही वांट्स। अदरवाइज क्या हो जाता है, सो अदरवाइज व्हाट हैपेंस, सी देयर आर सो मेनी वर्कर्स वर्किंग इन ए शॉप एंड सम ऑफ देम आर स्किल्ड एंड सम ऑफ देम आर अनस्किल्ड और मे बी सेमी स्किल्ड। तो क्या हो जाता है, इन लोग गलती से कोई और एक आइटम उठा देता है, आपको बेच देता है, because actually you don't need that item, so you have to put one more purchase return, you have to raise one more purchase invoice document, and you have to maintain that, and you have to put it in the GST register. That of course that comes automatically, but you have to show it in the GST return register. So this and all are headache. By the same time you are losing a customer because of not having the product in your godown. See, देखिए दिस इज लॉजिकली करेक्ट बट टेक्निकली फेल्यूर। क्यों टेक्निकली फेल्यूर? सी फॉर द आइटम नंबर 1 इंजन गार्ड MAT ओरिजिनल मैंने लिखा है, वहाँ क्या हो जाता है, देयर इज़ नो आइटम डिस्क्रिप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम एट आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल. For not having that, that table returns me a null value. So there are two or three types you may think of solving it by checking is null operation, by checking is null operator. अब देखिए मैं अभी एक फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ. सो या कॉलेज स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो. कॉलेज क्या कर देता है, अगर आपने 2 स्टेटमेंट लेके उस 2 स्टेटमेंट में अगर कोई एक वैल्यू नन हो गया, देन दी फर्स्ट नॉन नल वैल्यू विल बी अपीयरिंग फॉर प्रिंटिंग और मे बी फॉर डिस्प्ले. बट व्हाट इज़ द यूज़? कॉलेज अगर मैंने यूज़ कर दिया तो व्हाट इज़ द यूज़? दैट इज़ नॉट सर्विंग माई पर्पस. बट इफ आई चेक दैट sentence or that string with is null or not null conditions, then also they are almost like a college statement. But to avoid that, what I do is I am just thinking of some other solution. JK जैसे एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए आपको बॉलिंग सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना. सिमिलरली आई एम थिंकिंग लाइक दैट बाय यूजिंग सब क्वेरीज आई नो इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन दैट रिजल्ट. दैट वॉज एक्चुअली ए रॉन्ग क्वेरी. अभी उसने के बाद अब मैं ये नया क्वेरी लिखता हूँ. वो सिर्फ आई डोंट वांट टू टेक आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल. फॉर मी इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली ट्रांस टू टेबल इज़ इनफ. अब देखिए मैं आपको इसके साथ एक छोटा सा इनवॉइस डिज़ाइन भी सिखा रहा हूँ. इसमें कुछ नहीं रहता है. टोटल CPI 12 का मतलब ये बिजी का क्या है, ये फॉर पेपर इन लोगों देने का आपको 8 इंच विड्थ बाई 10 इंच हाइट. अगर आपको ये 5 लैंडस्केप आपको लेना है, बिजी का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगा 5 इंच विड्थ में 8 इंच हाइट में. यू आर थिंकिंग दैट सी इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर थिंकिंग दैट यू कैन नॉट प्रिंट मोर देन 48 लाइन्स बिकॉज सी वो टिल्ट हो जाता है ना. 8 इंच यहाँ आके और 5 इंच यहाँ आके हाइट बना भी 8 इंच दिया है ना. यू आर थिंकिंग लाइक दैट, इजंट इट? सो इट इज़ नॉट द केस. इन दैट केस ऑल्सो number of lines will be 60 only. 50 is not 60, it will come down to 59, but theoretically they say it as 60 lines. Okay, now let us forget about that. Now let us come to invoice result in our this particular case.
अब मैंने हेडर का लाइन सेट कर चुका हूँ। इसके बाद जो हेडर में बचता है ना, हेडर का लाइन आना ही सेट कर रहा हूँ, या तो 18 का या 5 बचा, 5 जाके बॉडी में डाल दिया मैंने, वहाँ बचा यहाँ आके डाल दिया। अब देखिए बिजी आपके लिए कितना काम कर देता है, कितना आसान से कर देता है। देखिए ये पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ओके, वहाँ तो नीचे लाइन लिखला है, बस हो गया। अब थोड़ा आपको इनवाइस डिज़ाइन मैंने दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट एंड परफेक्ट फेमिलियर विथ द सब्जेक्ट। इनवाइस डिज़ाइन मुझे दिखाने का जरूरत ही नहीं था, बट what is the use if I tell you only the theory? See, you want to drive a car, and if you want to drive a car on the road, you have to go to driving school and you have to study it. मैं क्या कर रहा हूँ? I am taking you to the car there. If I explain the theory as if you use this, this will happen. If you use this, that will happen. No, that doesn't matter. आप कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कार ड्राइव करने के लिए मैं आपको कन्विंस करने के लिए एक थियरी का ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए मैंने सेकंड लाइन यूज़ किया। अब मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल, उसके बाद राइट साइड लिख देता हूँ। कितना लंबा, कितना कहाँ से लिखना है, मैं 133 ब्लैंक स्पेस को लेता हूँ। ट्वेंटी फोर लिया, 24 है तो गलती है, एक्चुअली 123 ही लेना था। 123 की वहाँ वर्टिकल लाइन आके कट हो जाता है। यहाँ लेता हूँ अमाउंट, लेता हूँ ब्लैंक स्पेस 124 लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आता है जो अमाउंट रहता है वो अमाउंट को यूज़ कर देता हूँ, 12 का यूज़ किया। अब आइटम बॉडी में अमाउंट, ग्रैंड टोटल अमाउंट लेता हूँ 12, वहाँ देता हूँ स्पेस, वहाँ देता हूँ BLV कामा ये। अब मेरे पास 123 ब्लैंक स्पेस रहता है। अब यहाँ लेता हूँ सीरियल नंबर, ये SN नंबर, अब 3 हो गया। अब BLV कामा ये हो गया, 4 हो गया। 4 होने के बाद यह क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस को लेना पड़ेगा, 119 ब्लैंक स्पेस को लेना पड़ेगा वो डिडक्शन करके। अब तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके दिखा देता हूँ, वो जो फुटर था वो डिफ़ॉल्ट फुटर को मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आके प्रिंट के लिए इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। देखिए इतना तो आ गया, चलो ठीक है, इतना तो आ गया। अब देखिए वहाँ तो वो लाइन कट हो के 4960 का ही होना था। अब देखिए मैंने 124 लिया था, मैंने कहा था आपको आई हैव मेड ए मिस्टेक, नाउ आई हैव टू करेक्ट द मिस्टेक। टू करेक्ट द मिस्टेक नाउ आई विल गो एंड राइट 123। सी दैट इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। डिज़ाइन अच्छा हो गया, वहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब आके बोलता हूँ ठीक है, अब बॉडी भी शुरू कर देता हूँ। अब देखिए अब मैं क्या कर दिया, इतना पूरा रख के कॉन्क्रीट करते बेच दिया। बेच के मुझे क्या फ़ायदा, कुछ तो फ़ायदा तो होना ही ना। सब क्वेरीज नेम क्या कर देता हूँ मैं अब लिख देता हूँ फॉक्स, यहाँ लिख देता हूँ 96। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ, सेव करके बाद में वो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं काट के सब स्ट्रिंग में काट देता हूँ, वो बात अलग। अब ब्लैंक स्पेस को 32 डाल दिया। BLV का ये अब हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं।
अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में क्या है। इतना तो आ गया आपको। देखिए सीरियल नंबर 1 अभी भी नहीं आया, सीरियल नंबर 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, 8 नहीं आया। ठीक है, इतना तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मैंने क्वेरी लिखा है वो क्वेरी तो गलत है। एक गलत होने से मुझे क्या हो जाता है, आप देखिए, अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं क्वेरी तो लिखते ही जा रहा हूँ। ये फर्स्ट लाइन छोड़ के नीचे लाइन को आ गया। सेलेक्ट I2 डॉट डिस्क्रिप्शन 1 फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन एज I2 वेयर I2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू tran2 डॉट SR नंबर लिख देता हूँ। अब क्वेरी तो ठीक हो रहा है, ठीक है, अब तो क्वेरी ठीक हो रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, क्वेरी तो जब ठीक हो रहा है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेरी तो ठीक हो रहा है। अब सवाल ये है, अब तो आगे बढ़ रहे हैं, स्टॉप कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, इस क्वेरी में अभी लिखता हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन डॉट वो I2 वेयर I2 डॉट सीरियल नंबर इज इक्वल टू tran2 डॉट SR नंबर डॉट 2। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा सब क्वेरी है फ्रॉम tran2। देखिए इन दिस कंडीशन आई हैव नॉट जॉइंड एनी 2 टेबल्स। सी आई हैव नॉट जॉइंड tran2 विच इज अ पेरेंट टेबल विथ आइटम डिस्क्रिप्शन विच इज ए yes, this joint is correct. tran2 item description table is actually it's a child table. See I have joined, I am not going to join parent table with the child table. देखिए अब आ गया आपको रिजल्ट। सो ये तो आ गया आपको। अब क्या कर देता हूँ मैंने, अब कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। सी कॉन्कैटिनेट वर्क्स इन माई कंप्यूटर ओनली बिकॉज सी आई एम यूजिंग SQL सर्वर एज माई back end. So for having used that SQL server as at my back end, so this is the output. ये आउटपुट मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने SQL सर्वर को बैक एंड में यूज़ कर रहा हूँ। सी नाउ आप ये देख सकते हैं क्योंकि इफ़ आई यूज सी फॉर सीरियल नंबर 7, इफ़ आई यूज सच ए सो लॉन्ग आइटम नेम्स, एक्चुअली इट्स ऑफ नो यूज़। क्योंकि मुझे इतना लंबा अगर आइटम नेम मैंने प्रिंट करने चला गया तो मुझ पे क्या होगा। See, I have to show HSN code in my invoice. I have to show quantity. There it's a demo. Okay, I am showing you on the screen. It is a demo. But in the practical situation, whereas I have to show HSN code, I have to show quantity, I have to show unit, I have to show price. If I am being a wholesaler, then I have to show list price and discount and all that I have to show. हियर मैं गैप लेने के लिए मैं इतना पूरा नाटक कर रहा हूँ ऑन द स्क्रीन। व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट आई एम डूइंग इज ओनली जस्ट टू मेंटेन ए गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स, दैट्स ऑल एंड देयर इज नथिंग एल्स। जब आप कॉन्केटिनेट कर देते हो ना, तब क्या हो जाता है, वो दैट बिकम्स ए सिंगल स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग, सिंगल लॉन्ग स्ट्रिंग। आप आइटम एड्रेस को भी ऐसे ही कॉन्केटिनेट कर सकते हो। So in my condition, this is actually it's an adverse condition, it's a theoretical condition. थियरी में आप क्या कर सकते हो, लंबा लंबा लिस्ट आप दिखा सकते हो, बट जब when it comes to the practical situation, this is not going to work out. अब मैं क्या कर देता हूँ, देखिए see now you're seeing on my screen what I'm doing is I'm using a function called substring. वहाँ आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट ऑफ लिख के मिड ऑफ लिखना पड़ेगा। जब व्हेन यू आर यूजिंग MS Access, then you have to use, instead of substring, you have to use a function called MID mid, बाद में 2 ब्रैकेट लेफ्ट और राइट ब्रैकेट के अंदर। अब जो मैंने यहाँ 40 यहाँ लिखिए, मैंने लिखा है ना 41 to 80, 1 to 40, सिमिलरली ऐसे ही 2 स्ट्रिंग या 3 स्ट्रिंग लेके आपका काम कर लेना। जो बैक एंड एक्सेस यूज़ कर रहा हो ना, उन लोगों के लिए मिड ऑफ
वो फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो तो माई एसक्यूएल का फंक्शन है, वो फंक्शन आपको मामूली एसक्यूएल का फंक्शन है, वो फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन यू आर यूजिंग एसक्यूएल सर्वर you cannot use that function, you have to use only substring. Now देखिए, now I am removing that, now I am again once again using condense on condense off. Here in this condition what I do is I have already cut the substring, so I have to write. Actually here also I am making a mistake, I have made a mistake. In the second line I should have used print if condition. I have to first I have to press F4, then at the bottom of that F4 list, drop down menu list, there's a function called print if any. What is that meaning? Print if any cannot be used everywhere. It cannot be used at subtotal information or bill entry information. It is a limited application. You can use it at header, footer, and as well as at few places, but not at all the places. वो प्रिंट इफ एनी, अब देखिए सेकेंड ले, हाँ मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है प्रिंट इफ एनी तो लिखना ही पड़ता है, क्योंकि इफ आई डोंट हैव सेकेंड स्ट्रिंग, सी इन द फर्स्ट केस 1 to 40 इट्स ओके, बट इन द सेकेंड लाइन व्हेन इट इज इन द सेकेंड सब स्ट्रिंग सेट, अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट इफ यू हैव टू हैव ए better idea, that I mean to say that when if you want to have a clear cut picture of that, then it's only possible if you use item serial number. Now I am showing you on the screen, it's just a demo purpose. This demo purpose will be meaningful and it will be a better looking product only when if you use string, not string, serial number. Now I'm going to use, it's okay, it is now covered by 60 कैरेक्टर द स्पेस, उतना लंबा स्ट्रिंग को मैंने काट के 60 कैरेक्टर स्पेस दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आई वॉन्ट टू रीड इट क्लियरली, आई वॉन्टेड टू रीड दैट क्लियरली। नाउ व्हाट आई डू इज टू हैव ए क्लियर कट आइडिया, क्योंकि मुझे अभी एक बेटर आइडिया चाहिए। बेटर आइडिया के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ आके आइटम में these could be certain stored procedures or maybe some sort of queries, already pre-written queries, but I suppose this could be some sort of functions or किसी ने यूज़ किया है डेवलपर्स ने, either this could be some functions or this could be stored procedures and they allow you to use in your invoices. देखिए अब देखिए, see this is now giving you a better idea. Third line in the invoice body, that is Tata Cub bar Tata Intra, that is actually that is not a individual entry, that is a part of the entry. अभी देखिए आपको you got the clear idea. See now I have printed it, but I have printed it in a document. That document could be a sales invoice or a purchase invoice or a sales return invoice or something like purchase return invoice. It's all okay here in the case of printing. But what about printing my stock status? Then this query will not help me. See now, to make you familiar with the product, what I do is washed and polished, यहाँ मैं स्टोर कर देता हूँ. Let me see what is going to happen. Actually, if your query is perfect, you should have it at your printout. Now देखिए, washed and polished at 4th. Automatically that line got created. That print if any statement never worked, and that continued. Okay, now coming to the question of देखिए, अब देखिए हमें क्या करना है, स्टॉक स्टेटस को प्रिंट करना है. See, by default it's having only this much of length, whatever the item name is there, that is getting printed. But I want, मैंने बोला ना आपको, देखिए मेरा पास वायरिंग लूम है, नया मॉडल में एक छोटा सा चेंज है, एक वायर काट के इधर से उधर कर दिया तो, और दैट विल बी सुटेबल फॉर न्यू मॉडल आल्सो. बट दोज पीपल हु आर एट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, उन लोग गुग्गू लग गए, उन लोगों को पता नहीं रहता है. लेकिन वो जो क्या बोलता हूँ, सब डीलर ने, रिटेलर
जो रिटेलर रहता है ना, रिटेल को हर एक आइटम का चीज़ का पता रहता है, उसको क्या करना है, रिटेलर्स को कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स लेना पड़ता है। इसके लिए वो क्या कर देता है, वो पर्टिकुलरली पक्का स्टोर करके रख के बैठ देता है, मुझे वो नहीं यही चाहिए बोल के, क्योंकि गलत आ गए तो उतना दिन टाइम भी वेस्ट, एंड if his customers ask him, he cannot provide that item, even that he is going to lose one more customer, and at the same time and inventory burden, he want to reduce his inventory burden. In order to achieve that ऐसा करना पड़ता है। अब देखिए मैंने एक क्वेरी लिखने शुरू कर दिया, उसका नाम है फ्लो। वो फ्लो में मैं लिखता हूँ मास्टर वन डॉट नेम। what is the need to rate me like that? There is no need to write me. If I rate name, that's okay. Only in the master one table you have a word called name, whereas if you go to help one table, there is also one field, particularly a vertical column that is called field. वो क्या है, name alias है वहाँ पे. So there is no confusion for this computer. Even if you forget by writing master1 dot name, if you write simply name, this query will get executed. अब देखिए सेकेंड थर्ड लाइन इज ए सब क्वेरी, थर्ड लाइन इज ए सब क्वेरी। अगर किसी को ये जानना चाहते हो कि वाई यू आर यूजिंग दोज पर्टिकुलर फंक्शंस, सी मोस्ट पीपल आर जस्ट what they are doing, they are just copy pasting my SQL codes and they are using it. But those who want to learn, if you want to learn, you can send me a message to my WhatsApp number 97418640025. I have WhatsApp. Generally I don't pick anybody's calls. If you want to have any guidance from me, you can put me messages. I will sometimes when I'm free, I will open my WhatsApp and I will check messages and I will make you a reply. If you need any video support, even that also I will do for you. My intention is you guys, you have to learn by your own. हेल्प तो मैं करता हूँ क्योंकि आई एम राइटिंग दिस क्वेरीज बाय माई एक्सपीरियंस। अब इतना तो हो गया, अब इतना होने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू कीप क्वाइट। आई सी in this list, now what I am going to do is, अब ये तो I want to change the name, perhaps Alt F8 मैंने दबा दिया। अब लिखता हूँ 4 FOUR 4 जस्ट हो गया, where master1 dot master type is equal to 6 था ना। अब आता हूँ सामने, इतना तो है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इनको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ मैं। जो एक्सेस बैकएंड में है उनके लिए क्वेरी तो सेम है, लेकिन स्ट्रिंग जॉइनिंग मेथड क्या हो जाता है, उनको कॉन्कैट नहीं है। लेफ्ट साइड 9 का ऊपर वो लेफ्ट साइड ब्रैकेट रहता है ना, वो डालो फर्स्ट लाइन के, एंड फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन को जॉइन करने के लिए एम्परसेंट वही 7 नंबर का की का ऊपर रहता है ना, वो उसको मारो। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, master1 डॉट नेम। सरप्राइज्ड, ये क्या आपको सरप्राइज हो गया? हाँ होना ही है ये सरप्राइज। क्यों? क्योंकि देखिए, इफ़ यू चेक माई प्रीवियस वीडियोस ऑफ माइन दैट इन एट द यूट्यूब, if you go to custom column में what happening was, see there I have written where एक सब क्वेरी लिख देता था, लेकिन but here I have name. When I have name, it is possible for me to take master1 dot name. ओके ठीक है, यहाँ मैंने राइट कर दिया सब क्वेरी। यहाँ वो सब क्वेरी का नाम लिखता हूँ 4। यहाँ वो सब क्वेरी का नाम लिखता हूँ 4। अब 4 लिखने के बाद तो मैं सेव किया, इनपुट पैरामीटर है उसको F1। अब आ गया, देखिए यहाँ देखिए, शॉर्ट लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट आ गया, लंबा लिस्ट को लंबा लिस्ट आ गया। मास्टर1 टेबल से मैंने क्लब करने के लिए अब इतना तो आ गया। अब मैं फॉर्मेट को हटा देता हूँ। हटा देने के बाद अब प्रिंट आउट के लिए क्या कर देता हूँ, देखिए इतना आइटम जब मैं स्टॉक स्टेटस से ही मेरा ऑर्डर डाल देता हूँ। मुझे स्टॉक स्टेटस का ऑर्डर डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे आता हूँ, अब
किकर एचएल होल्डर बॉक्सर एयर को आता हूँ और लेता हूँ। यहाँ थोड़ा आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये सिमिलर इसका रिफ्लेक्शन मुझे मिल जाएगा स्टॉक स्टेटस पे। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ डिस्प्ले में आता हूँ, बैलेंसेस ले आता हूँ। एचएल होल्डर बॉक्सर एयर था, यहाँ देखना पड़ेगा एचएल होल्डर बॉक्सर। देखिए वहाँ देखिए बॉक्सर एयर के बाद वह तो कंटिन्यूस वर्ड तो आ गया, पर आई डोंट एक्चुअली डोंट वांट लाइक दैट। अब यहाँ मैंने एक स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ। अब क्या होगा, अब तो यहाँ तो होगा, यहाँ तो होगा, बट यहाँ तो होगा ही, हो रहा है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब आ रहा है, फिर भी ये देखिए CDI 100 इस वो आ गया बस लास्ट बट वन लाइन में। वो क्या है, डिस्प्ले में 80 कैरेक्टर्स मैंने ले लिया ना, वो कैरेक्टर को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा।